Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so very good morning all. In the previous video, we have gone through the linear search method. So in linear search method, there are some drawbacks. The drawbacks are suppose if you want to perform a linear search on any kind of data, or if you want to perform the linear search on huge amount of data, so it will take a more time as compared to the other searching techniques. So linear search will take a huge amount of time, or we can say it will take a more time to reduce the time complexity, or we can say to reduce the execution time. We will use a binary search concept. So basically binary search यानी होता क्या है? So binary search it is also one of the searching technique. ये भी एक सर्चिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग we are going to find out the particular data or a particular element which is present in the group of element or not. कोई डेटा को अगर मुझे सर्च करना है ग्रुप ऑफ डेटा में, so for that we need to find out the so for that we need to use a binary search technique. So talking about the binary search method, the very prerequisite condition for binary search is the array or data should be in a sorted manner. जिस डेटा पे हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, whenever you want to perform a binary search on any sort of data, that data should be in a sorted order, either in ascending or in descending order. So first of all, you need to sort a given set of data by using the bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, and so on. So first of all, you need to sort out the data using any sort of using any sorting methods or any sorting techniques. So first of all, क्या करना है आपको? जो भी डेटा गिवन है वो डेटा को पहले sorted order में लाना है. Then after you have to apply the binary search method. Okay. So if we are talking about the complexity of the binary search keys, so talking about the complexity, the binary search complexity is big O of log n. Why it is a logarithmic complexity? Log n क्यों बोला गया है? Because every time whatever data you want to search, or whenever you want to perform binary search on any sort of data, so every time जो भी data है, और every time your array broken into two parts, every time आपका array एक शॉर्ट होते जाता है, एक स्मॉल इसमें आपका क्या होगा कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एलिमेंट्स है, देन वो 50 एलिमेंट्स पे काम करेगा, देन वो 25 एलिमेंट्स पे काम करेगा, सो हाफ होते जाता है. सो इसीलिए उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? बिग ऑफ लॉग एन होता है. ठीक है. सो जस्ट वी विल सी हाउ वी विल वर्क आउट विद द बाइनरी सर्च मेथड. You will understand the very first thing is, the very first requisite is the array should be in a sorted manner. जिस डेटा पे आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है वो डेटा आपका sorted order में होना चाहिए. For example, here we can say it is just a simple example. Here the total 9 elements are given. आपके पास total 9 elements given है. ठीक है. So total 9 elements are given to you. The elements are stored in the position 0, 1, 2, 3, 4 till the 8. 8 तक हमने एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं. 0th लोकेशन पे एलिमेंट और डेटा स्टोर्ड है 6, 1 पे 12 है, 2 पे 17 है, 3 पे 23 है, 4 पे 38 है, 5 पे 45 है. Likewise, on the 8th location we are having the number 90. So जब भी हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, whenever we want to perform the binary search technique, every time your array should be in a sorted manner. Once you get the sorted array, after that you need to find out the middle element. Always you need to find out the middle element. So how we are going to find out the middle element? Middle element कैसे निकाला जाता है? How we can find out the middle element? So always middle will be find by लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2. हमें क्या करना है? एक प्रोसेसिंग करना है. क्या प्रोसेसिंग करना है? हमें क्या करना है? लोवेस्ट पोजीशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 नंबर है, 10 डेटा पे मुझे सॉर्टिंग करना है. सो ऑलवेज सपोज मैंने अगर अरे 0 से स्टार्ट किया है तो कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा, बिकॉज 10 एलिमेंट्स है. 0 से स्टार्ट किया तो 9 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट किया तो 10 तक जाएगा. ठीक है. सो ऑलवेज वी नीड टू फाइंड आउट द मिड. मिड कैसे निकाला जाता है? सो लोवेस्ट पोजीशन प्लस हाईएस्ट पोजीशन. आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा.
सो सपोज अभी यहाँ पे 9 एलिमेंट्स दिए हुए, तो व्हाट इज द लो वैल्यू? लो वैल्यू इज 0 एंड अपर वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर आपकी अपर वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 8। तो ये आपका एल है, दैट इज लो वैल्यू है, और ये आपका क्या है? हाई है, दैट इज अपर वैल्यू है। सो मेनी टाइम्स we can give the different names also. Someone can use लो के जगह आप लोग लोअर बाउंड यूज कर सकते हैं, एलपी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी नेम, यू कैन यूज लोअर बाउंड। आप एच के जगह दैट मींस हाई के जगह आप यूज कर सकते हैं अपर बाउंड, ठीक है। कोई लो के जगह कोई फर्स्ट यूज करेगा, हाई के जगह कोई लास्ट यूज करेगा। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग एज पर यूर चॉइस, आपको जो वेरिएबल के नाम देना है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज वी नीड टू फाइंड आउट द मिडल एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोला, लोअर बाउंड मतलब सबसे लोवेस्ट लोकेशन कौन सा है, और अपर बाउंड मतलब सबसे हाईएस्ट लोकेशन कौन सा है। अगर 100 एलिमेंट्स है तो सबसे लोवेस्ट लोकेशन 0 होगा, हाईएस्ट कितना होगा? 99 होगा, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द मिडल एलिमेंट। मिडल कैसे निकाला जाता है? सो लोवेस्ट लोकेशन प्लस हाईएस्ट लोकेशन डिवाइड बाय 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। सो हियर इन दिस केस सपोज लो वैल्यू इज 0, आपका लो वैल्यू कितना है? 0 है। हाई वैल्यू कितना है आपका? 8 है। तो 0 प्लस 8 8, 8 डिवाइड बाय 2 विल गेट द वैल्यू 4। आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स अभी आपका मिडल कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे आपका मिडल आ चुका है। सो नाउ सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट सर्च की वैल्यू इज 45। अभी आपको यहाँ पे सर्च करना है 45 प्रेजेंट है। माय सर्च की वैल्यू इज 45। क्या डेटा सर्च करना है? 45 सर्च करना है। सर्च की वैल्यू कौन सा है? 45 है। ये आपको सर्च करना है कि वेदर 45 इज प्रेजेंट इन द अरे और नॉट। सो आपने क्या किया? पहले मिडल निकाला। मिडल मिडल कहाँ पे है आपका? मिडल कहाँ पे आपका? यहाँ पे, ठीक है। मिडल आपका कहाँ पे है? 4 पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर सर्च की वैल्यू विद द मिडल लेवल। मिडल में क्या है? 38 है, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक वेदर योर सर्च की वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंट एट द मिड और नॉट। आपको क्या सर्च करना है? आपको 45 सर्च करना है। 45 सर्च करना है, तो यू हैव टू सी वेदर 45 इज प्रेजेंट इन द मिडल एलिमेंट। दैट मींस 45 आपका मिडल में है क्या? मिडल का लोकेशन नंबर क्या है? 4। 4 लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है? 38 प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे 38 प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? 38 प्रेजेंट है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 45। सो 45 विच इज इक्वल टू 38 है क्या? नहीं है। 45 विच इज नॉट इक्वल टू 38, ठीक है। यहाँ पे मिडल में क्या है? 38 है। हमें क्या चाहिए? 45 चाहिए। सो 45 विच इज नॉट इक्वल टू 38, ठीक है। सो फिर हम नेक्स्ट केस में क्या चेक करते हैं कि हमें जो सर्च करना है, हमारी जो सर्च की वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट और लेस देन द मिडल एलिमेंट। यानी हमें जो सर्च करना है वो मिडल में जो वैल्यू है उससे बड़ा है या छोटा है। अगर ऑब्वियसली बड़ा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 38 के राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड में है। तो 38 से ऊपर में जो भी वैल्यूज होगी, 38 से ग्रेटर जो भी नंबर होंगे वो उसके राइट हैंड साइड में होंगे। अगर सर्च की वैल्यू आपका छोटा होगा तो आपको कहाँ सर्च करना पड़ेगा? 38 के लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलवेज छोटे वाली वैल्यूज कहाँ आएगी? 38 से जितनी भी कम वैल्यूज है वो कहाँ आएगी? 38 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपका सर्च के एलिमेंट आपके मिडल में प्रेजेंट नहीं है, आपके मिडल में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। आपको इस साइड में जाना है या लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में जाना है, ठीक है। सो नाउ आपने फिर चेक किया कि 45 38 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है दैट मीन्स आपको क्या करना है? आपको राइट हैंड साइड में जाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जाना है आपको, ठीक है। दैट मीन्स आपका अरे अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि एक इधर था। आपको 38 के दैट मीन्स 38 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको काम ही नहीं है, क्योंकि आपका एलिमेंट बड़ा है। बड़ा है तो आपको 38 के राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका सर्चिंग कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इधर से इधर रहेगा। दैट मीन्स आपको इतने पार्ट में सर्चिंग करना पड़ेगा। इधर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इधर आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका की वैल्यू सर्च की वैल्यू आपके मिडल एलिमेंट से बड़ा होता है तो आपका क्या चेंज होगा? ठीक है। आपका लो 0 पे था, अभी आपका लो चेंज हो जाएगा। अभी लो आपका क्या होगा? मिड प्लस 1 होगा। तो मिड क्या कहाँ पे था? 4 पे था। तो अभी आपका लो क्या हो जाएगा? मिड प्लस 1। तो मिड वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 प्लस 1 5। तो अभी आपका लो कहाँ पे आ गया? 5 पे आ गया, ठीक है। और आपका हाई कहाँ पे? एज इट इज लास्ट पे। हाई चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हाई आपका एज इट इज जगह पे है। समझ में आया? ठीक है। अगर मान के चलते कि आपको 38 से कम वैल्यू आपको सर्च करना है, आपको 45 नहीं, आपको 12 सर्च करना है,
ठीक है, तो आपने चेक किया विच इज वैल्यू इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ लोकेशन, मिडिल लोकेशन पे है क्या, नहीं है, नहीं है तो आपने चेक किया फिर 12 38 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, छोटा है तो आप 38 से लेफ्ट में जाओगे, यानी आप इधर जाओगे, इस साइड में जाओगे, ठीक है, आप इस साइड में जाओगे, तो इस साइड में जब जाते हो यानी कोई भी वैल्यू आपके मिडिल से छोटी होती है, तो छोटी होती है तो लो आपका हमेशा एज इट इज रहेगा, आपका चेंज क्या होगा, हाई चेंज होगा, क्योंकि हाई आपका लास्ट में था, अभी हाई आपका क्या हो जाएगा, मिड -1, यानी 4 पे था मिड, तो अभी मिड कितने पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ आपको 45 सर्च करना था, तो अभी हमारा क्या हुआ, लो चेंज हो गया, लो कहाँ पे आ गया 5 पे, मिड कहाँ पे आ गया, तो सॉरी एच कहाँ पे आ गया, हाई कहाँ पे आ गया आपका 8 पे, तो अभी हम लोग फिर से मिड निकालेंगे, तो 8 + 5 13, 8 + 5 कितना होता है 13, 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 करते तो व्हाट इज आंसर, आंसर इज 6.5, आंसर क्या है 6.5, तो अभी मिडल कहाँ पे चले गया, अभी मिडल आपका यहाँ पे चले गया, ये आपका मिडल हो गया, आपका मिडल एलिमेंट कौन सा हुआ, आपका मिडल एलिमेंट ये वाला हुआ, ठीक है, सो ये आपका मिड एलिमेंट हो गया, सो नाउ ये आपका मिड है, ठीक है, सो नाउ चेक, आपका 45 सर्च करना था, वेदर 45 इज प्रेजेंट ऑन द 6 लोकेशन, मिडल पे प्रेजेंट है क्या, नहीं, 45 आपका मिडल पे नहीं है, मिडल पे 77 है, नाउ चेक 45 77 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, सो 45 77 से छोटा है, छोटा है तो हमें 77 के लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स हमें कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स आपका 6 से 77 से आपका छोटा एलिमेंट है, दैट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी आपका इधर में कोई तो भी वर्क होगा, इधर में कहीं तो भी आपका डेटा मिलने वाला है, ठीक है, सो अभी आपका 6 से दैट मीन्स 6 पे 77 स्टोर है, 77 से 45 लेस है, ठीक है, सो अभी लेस हुआ तो आपका क्या चेंज होगा, आपका लो एज इट इज रहेगा, आपका क्या चेंज होगा, हाई, तो हाई क्या होता है आपका मिड -1, तो 6 - 1 विल गेट 5, सो अभी आपका हाई क्या हो गया 5 हो गया, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल एलिमेंट, अभी लो भी आपका 5 है, हाई भी आपका 5 है, अभी आपको मिडिल निकालना है, सो 5 + 5 विल गेट 10, 10 डिवाइड बाय 2 विल गेट 5, अभी आपका मिडिल कहाँ पे चले गया 5 पे आ गया, सो नाउ यू हैव टू चेक whether your element is present on the middle or not, so now your element is already present on the middle, so your search is successful, so likewise we are going to search the element using binary search method, okay, अगर आपने पूरा सर्च कर लिया लेकिन आपको एलिमेंट ही नहीं मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे, योर सर्च इज अनसक्सेसफुल और डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन डेटा सेट, गिवन लिस्ट ऑफ अरे, ओके, नाउ वी कैन सी, सपोज ये फिर से एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द आइटम 33, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है 33 फाइंड सॉरी 23 फाइंड आउट करना है, योर सर्च की वैल्यू इज 23, आपको 23 फाइंड आउट करना है, तो इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट द मिडिल एलिमेंट, अभी मिडिल निकालेंगे, तो मिडिल कैसे निकलता है आपका लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम क्या चेंज किया, बिगिनिंग प्लस एंडिंग, बट ऑब्वियसली बिगिनिंग क्या है 0 है, एंडिंग क्या है 8 है, ठीक है, समवन कैन यूज फर्स्ट लास्ट, समवन कैन यूज लोअर हाई, समवन कैन यूज लोअर बाउंड अपर बाउंड, नेम कैन बी एनीथिंग, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या किया, फिर मिडिल वैल्यू निकाला, मिडिल कैसे निकाला 0 + 8 डिवाइड बाय 2, 0 + 8 डिवाइड बाय 2 विल गेट 4, सो मिडिल एलिमेंट कहाँ पे आपका 4 पे, देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये लोकेशन है आपका 4, ठीक है, सो आपका 4 में क्या है, 4 में स्टोर क्या है आपका यहाँ पे 13 है, आपको क्या चाहिए 23 चाहिए, तो 13 विच इज इक्वल टू 23, नो, तो फिर चेक करो 23 30 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा, 13 के राइट में जाना पड़ेगा, ठीक है, अभी आपको 13 के राइट में जाना पड़ेगा, दैट मींस आपको अभी इधर में काम करना है, यहाँ से इधर में, ठीक है, तो इधर में काम करना है, तो अभी अगेन आपको मिडल निकालना पड़ेगा, अभी मिडल निकालना पड़ेगा तो आपका हाई एज इट इज है, हाई चेंज हुआ क्या, नहीं, हाई 8 पे ही रहेगा, लो क्या चेंज हो जाएगा, लो इज इक्वल टू मिड +1, तो मिड कहाँ पे था पहले प्रीवियस में 4 पे था, अभी मिड कहाँ पे चले जाएगा 4 + 1 5, अभी मिडल कहाँ पे चले गया, सॉरी अभी आपका लो क्या हो गया 5 हो गया, यानी आपका लो 5 है, यानी आपका यहाँ पे बिगिनिंग 5 हो गया और आपका एंडिंग यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 + 5 13, 13 डिवाइड बाय 2 व्हाट इज द वैल्यू 6.5, 13 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 30 डिवाइड बाय 2 को करोगे यू विल गेट अ वैल्यू 6.5, 6.5 का इंटीजर करते यू विल गेट अ वैल्यू 6, सो 6 पे आपका मिडल जाएगा, दैट इज 6, ये 6 पे आपका मिडल चलेगा, नाउ यू हैव टू चेक मिडल में क्या है 20, आपको क्या चाहिए 23, सो 20 विच इज इक्वल टू 23, नो,
अगेन फॉल्स, फॉल्स हुआ। सो फिर चेक करेंगे कि 23 20 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो अगेन आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। अगेन आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से इधर राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स अगेन लो हाई विल बी सेम, लो विल बी चेंज। तो विल लो क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन, प्रीवियस मिड कहाँ पे था, 6 पे था, तो 6 प्लस 1 आपका 7, यानी आपका मिड कहाँ पे चले गया, 7 पे चले गया, हाई आपका 8 पे। सो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट मिडिल लिमिट, 7 प्लस 8 विल गेट अ 15, 15 डिवाइड बाय 2 विल गेट अ 14 पॉइंट, विल गेट अ 7.5। सो 7.5 का इंटीजर क्या होता है, 7 होता है, तो 7 पे अभी हमारा मिड चले गया। नाउ वी हैव टू चेक द मिडिल एलिमेंट। मिडिल पे क्या है, 23, आपको क्या चाहिए, 23 फाइंड आउट करना था। सो 23 which is equals to 23, तो आपको एलिमेंट मिल गया। सो योर सर्च इज सक्सेसफुल। तो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द data using the binary search method. Now we will see the function for binary search method. How we are going to write out the function for binary search method. So you already know every function start with the name of the function, every function start with the return type. अभी यहाँ पे return type क्या लिखा हुआ है, integer. That means ये function पूरा execute करने के बाद एक value return करेगा, that is of integer type. After that the name of the function is binary search, एक नाम दे दिया है, binary search is the name of the function. After that what parameters we required, हमें क्या क्या parameters लगेंगे, एक array लगने वाला है, because सर्चिंग करना है तो we required array, क्योंकि ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट पे सर्च करना है, तो एक एक डेटा पे हम लोग ऐसे सर्च नहीं करेंगे, एक एक डेटा हम लोग वेरिएबल पे स्टोर करेंगे क्या, नहीं, तो स्टोर द कंप्लीट डेटा इनटू द array, इसलिए हमें एक array लगेगा। फिर इंटीजर एलबी, इंटीजर यूबी, LB stands for lower bound, UB stands for upper bound. You can take low and high also. Integer low, integer high, ऐसा भी लिया तो चलेगा। That is on your hand कि आपको वेरिएबल्स के नाम क्या देने। Someone can use beginning, ending. Someone can use start, end. Someone can use first, last. आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ जो भी देना है आपको, ठीक है। Now उसके बाद फंक्शन में क्या लिखा हमने, हमें ऑलवेज मिड फाइंड आउट करना है, इसलिए इंटीजर टाइप का मिड वेरिएबल लिया, एंड फाउंड इज इक्वल टू 0 लिया। एक फाउंड नाम का भी इंटीजर वेरिएबल लिखा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने क्या स्टोर करके रखा, 0। 0 इसलिए स्टोर करके रखा फाउंड में, ताकि अगर वैल्यू मिल जाता है तो मैं फाउंड को चेंज कर दूंगा 1 में, फाउंड में मैं 1 स्टोर कर दूंगा, इसलिए मैंने एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ वेरिएबल लिया है, ताकि अगर सर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो फाउंड का वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज 0 है, इसका मतलब सर्च अनसक्सेसफुल है। गॉट द मीनिंग? आफ्टर दैट एक फिर मैंने लूप चलाया, वॉइड लोअर बाउंड व्हिच इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। ये आपका लूप क्यों चला है, बिकॉज आपका एक बड़ा अरे, फिर आपका हाफ अरे में काम हो गया, फिर उससे भी हाफ, फिर उससे भी हाफ। देखिए आपने जो हमने जो एग्जांपल्स देखे उसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ा अरे था, उसका मिड निकाला, फिर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो लोअर हाई चेंज होगा, फिर उसका मिड निकालो, फिर वहां पे भी वैल्यू नहीं है तो फिर उसका मिड निकालो। तो ऐसे करते 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 अरे आपका दो आपका क्या हो रहा है, हाफ हाफ इसमें डिवाइड होते जा रहा है, इसीलिए, और वो प्रोसेस कंटिन्यू होते जा रही है, ठीक है, प्रोसेस कंटिन्यू होते जा रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने लूप चला है बाई लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक लोअर बाउंड लो की वैल्यू हाई से कम है, इन द फॉर्म ऑफ लो एंड हाई अगर बोलता हूं मैं, तो लोअर बाउंड इज बट लो एंड अपर बाउंड इज बट हाई, ठीक है। सो तब तक ये आपका लूप चलेगा। सो एवरी टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द मिडिल लिमिट। हर एक बार हमें क्या निकालना है, एवरी टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द मिडिल लिमिट। मिड कैसे निकालेंगे, एलबी प्लस यूबी डिवाइड बाय 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। सो मिड निकल गया, मिड निकलने के बाद व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक इफ नम व्हिच इज इक्वल टू अरे ऑफ मिड, यानी नम यानी क्या है, आपका सर्च की वैल्यू, यानी जो आपको वैल्यू सर्च करना है वो आपने किसमें डाल के रखा है, नंबर नाम के वेरिएबल में डाल के रखा है। सर्च की वैल्यू आपने किसमें डाल के रखा है, नंबर में। सो नंबर व्हिच इज इक्वल टू ARR ऑफ मिड, आपके आपका जो नंबर आपको सर्च करना है वो चेक करो, जो आपने मिडल एलिमेंट निकाला है, वेदर योर एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन द मिडल और नॉट। सो अगर होगा तो वो इफ के अंदर जाएगा, अगर हुआ नम मिड में ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो अंदर जाएगा, फाउंड की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा, और ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर वो मेन में फिर से वापस चले जाएगा, और मेन में वो डिस्प्ले कर देगा कि योर सर्च इज सक्सेसफुल, राइट। या फिर यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, देखिए इफ, ठीक है, आपका ये चेक हो गया, नम इज इक्वल टू एरर ऑफ मिड, फाउंड है, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये यहाँ पे आएगा, इफ फाउंड इज इक्वल टू 1, फाउंड का वैल्यू 1 हुआ है, सो आपका आंसर आएगा प्रिंट अप द नंबर इज प्रेजेंट। नहीं है, फाउंड इज इक्वल टू 1 नहीं है, इसका मतलब एल्स पार्ट में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नॉट प्रेजेंट, राइट। नाउ मान के चलते कि आपका नंबर मिडल पे प्रेजेंट नहीं है, आपका नंबर मिडल पे प्रेजेंट नहीं है, तो एल्स पे जाएगा, तो एल्स पे आएगा, एल्स पे आने के बाद फिर वो क्या चेक करेगा, इफ नंबर इज लेस देन मिड,
और नंबर इज ग्रेटर देन मिड। आपका जो नंबर है वो अरे ऑफ मिड में जो वैल्यू है उससे बड़ा है या छोटा है, यानी लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, ठीक है। सो इफ नम इज लेस दैन एआरआर ऑफ मिड, यानी नंबर आपका एआरआर ऑफ मिड से छोटा है, यानी की वैल्यू आपके मिडल वैल्यू से छोटा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो आपका अपर बाउंड उठ के कहाँ पे आएगा, मिड माइनस वन पे चले जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तो लो आपका सेम रहेगा, आपका हाई जो लास्ट पे था अभी क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन हो जाएगा, यानी मिड में जो वैल्यू उससे एक लोकेशन कम, दैट मीन्स मिड माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर नंबर आपका बड़ा है एआरआर ऑफ मिड से, यानी आपकी जो सर्च की वैल्यू है वो एआरआर ऑफ मिड में जो वैल्यू है उससे बड़ा है, तो आपको राइट हैंड साइड में जाना है। आपको राइट हैंड साइड में अगर जाना है तो आपका हाई तो सेम रहेगा राइट में, लेकिन लो आपका उठ के कहां पे आ जाएगा, लो को हमें कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर लोअर अमाउंट को हमें कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, मिड प्लस वन में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज यूज फॉर हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, अकॉर्डिंग टू फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, तो हमारा लो या हाई हमारा चेंज हो गया। चेंज होने के बाद अगेन ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये वाइल लूप क्यों चला है, क्योंकि बार बार आपका बड़ा अरे था उसमें से हाफ हो गया, फिर उसमें से हाफ होगा, फिर उसमें से हाफ होगा। सो इसलिए बार बार वही प्रोसेस चलने वाली है। अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द मिडिल एलिमेंट, फिर से हम लोग लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, बीट निकलेगा। अगेन वी हैव टू चेक कि हमारा जो वैल्यू है, जो नंबर है वो मिडिल में प्रेजेंट हो जाएगी। नहीं है तो फिर चेक करना है हमें लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। लेफ्ट में जाना है तो हमारा हाई चेंज होता है, और राइट में जाना है तो हमारा लो चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ये प्रोसेस चलेगा एंड फाइनली यहाँ पे हमें चेक करना है, हमने पूरा कर लिया, उसके बाद हम लोग फाइनली क्या चेक करेंगे, इफ फाउंड इज इक्वल टू वन, यानी फाउंड में क्या वैल्यू है चेक करेंगे कि फाउंड में वन है या जीरो है। अगर वन है तो आप क्या बोलोगे, द नंबर इज प्रेजेंट और वी कैन से सर्च इज सक्सेसफुल, ठीक है। या फिर फाउंड में वन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो लाइकवाइज वी हैव टू राइट द फंक्शन फॉर बाइनरी सर्च, लाइकवाइज द बाइनरी सर्च विल वर्क। Hope everybody understood the concept of a binary search, how to search the element using binary search method, how to write down the function for binary search method. Okay. Now, what are the advantages and disadvantages of binary search method? The advantage of binary search method is it will take half of the time as compared to the linear search method. Linear search को अगर 1 hour लगता है तो half of binary search will take half hour, ठीक है। दैट मीन्स अगर उसको 1 घंटा लगता है तो आपका बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए आधा घंटा लगता है, जस्ट एग्जांपल, ओके। दैट मीन्स बाइनरी सर्च technique will take a half of the time for execution, or we can say for finding the particular element in the group of element. So that is the advantages of binary search. The disadvantages is, or drawback of binary search method is, binary search will be work only on a sorted data element. बाइनरी सर्च आपका अनसॉर्टेड डेटा पे काम नहीं करेगा, ठीक है। लीनियर सर्च आपका सॉर्टेड डेटा पे और अनसॉर्टेड डेटा पे दोनों डेटा पे काम करता है, whereas binary search will be work on sorted data element only. That is a very prerequisite or primary condition for binary search is your data always should be in a sorted manner. नहीं होगा तो सॉर्टेड में लाना पड़ेगा, उसके बाद आपका बाइनरी सर्च आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। If the data is not in a sorted manner, so first of all you have to sort the data and then after you have to apply the binary search. So this is a drawback or limitation or disadvantage of binary search is binary search always work on a sorted data only. One more disadvantage is the algorithm or you can say program is little bit difficult to understand, ठीक है। जो लीनियर सर्च का प्रोग्राम बहुत इजी है, फंक्शन इजी है, so it is little bit difficult we can say, okay. So that is another disadvantage of binary search method, okay. Hope everybody understood the concept of binary search, the function for binary search, and how to solve the example using the binary search method, okay. So hope you all are understood. So thank you one and all, thank you.